Hi guys, welcome back to my channel. I am Sneha Hegde and I hope that you are doing well. So today we are going to create this beautiful flawless Navratra look, and for that you need to see the full video, and I really hope that you have already subscribed to my channel. And without any further ado, let's get started. Starting off with the well prepped skin is really important, and for that I have Plum Rice Water Niacinamide 10% serum. I use it every single day whether I apply makeup or not, but if you don't like applying primer, so you can skip that and use this because इसकी consistency एकदम primer जैसी है, sticky so it's really help your makeup to last longer. So this is how I like applying this. Few drops on my fingers and I'll melt it down on my fingers. And इसको थोड़ा सा rub कर लेंगे fingers पे, and then dab. And you can instantly see how dewy it looks on my skin. And that's it. इसको हम बिल्कुल रब नहीं करेंगे स्किन में, अपना टाइम देंगे कि स्किन इसको अपने आप ऑब्जर्व करे, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप में मूव ऑन करेंगे. So before moving to our next step, you can already see my skin is glowing with it. For our next, we have a Maybelline Fit Me Primer. So I personally don't prefer using primer, but अगर कोई festival है, I'll make sure कि मैं primer use करूँ because it really helps to make your makeup stay longer. So for that, today I'm using Maybelline Fit Me Matte Poreless Primer. So simply you're going to take some product on your fingers and then melt it down in your fingers only, and then start applying on your pores area. Basically on my T-zone I have more pores, so I like applying over there, and rest जितना भी बचा कुचा होता है वो I just apply on my face at last. So that's my preference. So guys, moving on to our next step, which is foundation normally, but I don't prefer using foundation on my skin. For that, I might be using concealer today, and for that, I have Cover Range palette from Mars. So generally what I do is I apply concealer on my upper lid first. उसको अच्छे से blend करके eye look पहले हम complete करेंगे, उसके बाद हम लोग हमारी skin पे move on करेंगे. So you can take a sponge. I have taken a blending brush which is from PAC. This is a concealer blending brush, and मैंने अपने skin range से बहुत similar color लिया है as you can see, and we'll start blending it on our eyes. हम थोड़ा थोड़ा product लेंगे, build करते जाएंगे जैसे जैसे आपको लगेगा, जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है. Make sure कहीं पे कोई crease ना रहे और आप evenly उसे blend कर रहे हैं, जिसके बाद we can set it, and उसके ऊपर हम लोग अपना eye shadow apply करेंगे. And now after blending it, अब हम इसे set करेंगे, and for setting I am using a compact powder from Wet n Wild. You can use a loose powder or a compact powder. Simply dust it off and उसको apply कर लो so that वहाँ पे कोई crease ना रह जाए and ये set हो जाए. So now we will start placing our eyeshadow colors, and I'm starting with a transition shade which is a brown color, and हम लोग इसे build करेंगे with very less product. Okay, हम धीरे धीरे करके इसे निखारेंगे बिकॉज अगर आप स्टार्टिंग में ही बहुत सारा प्रोडक्ट लगा देंगे तो शायद पैची हो सकता है. एज यू कैन सी थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट प्लेस किया, एंड उसके बाद आई स्टार्टेड ब्लेंडिंग इट. जितना अच्छा ब्लेंड होगा, जितना अच्छा कलर मिक्स होएगा एक दूसरे के साथ, उतना ही प्रिटी आपका आई शेडो लगता है. सो दीज आर द स्टेप दैट आई फॉलो, एंड एज यू कैन सी आई हैव टेकन अ प्रिसाइज ब्रश राइट नाउ, एंड थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके हम इससे भी करेंगे सो दैट शार्पनेस आए जो भी कलर आप लेते हैं, एंड उसको फिर आप बिल्ड करते रहेंगे बाय टाइम. सो अब हम इसको बिल्ड करना चालू करेंगे. एज यू कैन सी प्रिसाइज ब्रश है मेरा, एंड उस पर मैंने ज़्यादा पिगमेंट लिया था, एंड अब हम उसको प्लेस करने के बाद एकदम स्मूथली ब्लेंड करेंगे फ्रॉम आउटर कॉर्नर्स, एंड उसको लाते लाते हम इनर में बिल्ड करेंगे. मेक श्योर कि आप उसे अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं बिकॉज कोई हार्श एजेस नहीं होने चाहिए, कोई पैचीनेस नहीं होनी चाहिए, राइट? क्योंकि आप प्रोडक्ट प्लेस करते हैं तो होता है कभी कभी कहीं पे स्टिक हो जाता है. टू अवॉइड दैट यू नीड टू ब्लेंड इट वेरी लाइटली, एंड आप जितना ब्लेंड करेंगे वो जितना मिक्स होएगा उतना हेल्प करेगा.
सो नाउ इट्स टाइम फॉर एनहांसिंग योर लुक एंड फॉर दैट आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि मैं कौन सा ग्लिटर शेड लूँ. एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कि गोल्ड और शैम्पेन में आई वॉज कन्फ्यूज. सो आई थॉट वाई नॉट जस्ट स्वॉच देम. एंड क्योंकि स्वॉच में आपको ज़्यादा पता लगता है कि आपके शेडोज़ के साथ कौन सा जाएगा. सो व्हेन आई स्वॉच्ड इट मुझे क्लैरिटी मिल गई कि मुझे कौन सा शेड में जाना है. एंड यू कैन टोटली सी कौन सा ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, राइट. बिकॉज आप इसमें देखेंगे जो गोल्ड है वो थोड़ा ज़्यादा ब्राइट लग रहा है. तो हमने आई शेडो को जितना न्यूट्रल कलर दिया है, अगर हम उस पर ये लगाएंगे तो उसको इन्हांस ही करेगा. सो आई स्टार्टेड विद अ फ्लैट ब्रश. तो यू कैन सी कि मैं ब्रश से प्रोडक्ट को प्लेस कर रही हूँ, बट ब्रश जस्टिस नहीं दे रहा है उस कलर को, राइट. तो मैंने सोचा क्यों ना अपने फिंगर्स को यूज़ किया जाए. उससे थोड़ा सा प्रोडक्ट लेंगे एंड हम लोग जेंटली उसे स्प्रेड करेंगे अपने आईज़ पे. एंड यू कैन टोटली सी एक ही स्वॉच में वो कलर कितना ज़्यादा निखर के आया. बिकॉज हम लोग जहाँ ब्रश से ले रहे थे वहाँ पे बहुत मिनिमम प्रोडक्ट आ रहा था एंड यहाँ पे मैक्सिमम आया. सो अब आप देख सकते हैं मैं उसी ब्रश से अपने जो कॉर्नर्स थे जो ग्लिटर्स के उसको सॉफ्ट कर रही हूँ. बिकॉज बहुत हार्श लाइन आ जाती है तो हम उसको सॉफ्ट करेंगे किसी भी फ्लैट ब्रश से. बिकॉज आई प्रेफर फ्लैट ब्रशेज. सो उससे हम स्टार्ट करेंगे. सो नाउ आई एम टेकिंग अ डार्कर ब्राउन शेड एंड उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ अपने जहाँ पे हम लाइनर लगाते हैं वहाँ पे. तो आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ स्मज लाइनर टाइप ऑफ समथिंग. एंड इसको थोड़ा विंग में रखेंगे, बट मेक श्योर कि आप थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लें. बिकॉज अगेन अगर वो पैची हो जाएगा तो आप शायद नहीं संभाल पाएंगे. तो उस टाइम पे थोड़े थोड़े प्रोडक्ट के साथ वर्क करना इज़ मच मोर ईजियर. सो यहाँ पे यू कैन फर्स्ट क्रिएट अ बेस एंड देन उस पर आप प्रोडक्ट प्लेस कर सकते हैं. एज यू कैन सी सो नाउ वी विल स्टार्ट अप्लाइंग लाइनर. एंड लाइनर को हम ज़्यादा थिक नहीं रखेंगे क्योंकि हमने जो ऊपर विंग लाइनर क्रिएट करा था आई शेडो के साथ वो हाइड हो जाएगा. तो हम पतली पतली सी ही लाइन लगाएंगे एंड आईज़ को थोड़ा सा डिफाइंड दिखाएंगे सो दैट हमारे जो आईज़ हैं वो बहुत ज़्यादा स्नैच्ड लगे, डिफाइंड लगे. एंड जो हमारा आई शेडो है उसको ये इन्हांस करे. एंड मेक श्योर अगर आप विंग लगा सकते हैं तो आप विंग को ही प्रेफरेंस दें. बिकॉज उसकी वजह से ना आईज थोड़े से स्नैच्ड लगते हैं. एंड यू कैन टोटली सी अ डिफरेंस. एंड यहाँ से हमारा आई लुक फिनिश होता है. सो आई विल बी यूजिंग दिस कंसीलर पैलेट फ्रॉम मास अगेन. एंड द शेड दैट आई एम यूजिंग राइट नाउ इज दिस वन for my under eyes. And the brush again that I will be using is from PAC, which is the PAC 219. So normally I just don't like color correcting, but what I do is मैं सबसे darkest shade लूँगी अपने skin range का. So this is my darkest shade. I'll just pick some product and place it under my eyes and start blending with this brush. And once this is blended, I will be using a lighter shade than this to just highlight my inner eye. So once this is blended, I'll apply a liquid concealer on this, which is my Swiss Beauty concealer. This one. And थोड़ा सा ही प्रोडक्ट लेंगे, बहुत थोड़ा सा. In here just to highlight my under eye so that थोड़ा सा स्किन और स्नैच लगे और आई लुक को ज़्यादा दिखाए. So with no time it is blended, totally blended, and you can see the difference. Yes, you can totally see the difference कि ये थोड़ा ज़्यादा स्नैच लग रहा है और इसी में ये दोनों ज़्यादा निखर रहे हैं ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे, और यहाँ पे ये नहीं निखर रहे हैं. तो अब हम इसको भी निखारेंगे. इसमें भी हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे. अगेन कलर करेक्ट करेंगे.
मैंने ये वाला भी कर लिया, ये वाला भी कर लिया, और आपने पहले देखा था शैडोज थोड़े से न्यूट्रल लग रहे थे, बट वंस माई अंडर आइज आर डन, हाईलाइटिंग हो गई है, यू कैन सी एनहांस हो गया है आई शैडो भी बहुत ज़्यादा। एंड इसको हम सेट कर लेते हैं विद हेल्प ऑफ कॉम्पैक्ट, एनी लूज पाउडर और कॉम्पैक्ट यू कैन यूज। आई एम यूजिंग द सेम प्रोडक्ट दैट आई हैव यूज्ड फॉर माई अपर लिप विद हेल्प ऑफ अ फ्लफी ब्रश। Just need to set it so that कोई creases ना पड़े। I'm not setting my full face right now because मैंने बाकी जगह पे अभी कुछ भी नहीं लगाया है due to that. So moving on to our next step, which is again concealing only. So I will be concealing my forehead because as you can see the difference on my skin. Okay, might use it over here and here. And that's it. इसको थोड़ा सा हम blend कर लेते हैं. I hope you can see कि अब ये थोड़ा ज़्यादा even tone है, कुछ इतना ऊपर नीचे नहीं लग रहा है। सो आवर नेक्स्ट स्टेप विल बी कॉम्पैक्ट सो दैट हम इसको सेट कर लें, बट बिफोर दैट आई हैव वन क्रीम प्रोडक्ट टू यूज। सो हम पहले वो भी यूज़ कर लेंगे और उसके बाद लॉक करेंगे। सो गाइज मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टेप विच इज़ ब्लश, एंड मैं क्रीम ब्लश यूज़ करती हूँ एंड इट इज़ नॉट ऑल्सो अ ब्लश, दिस इज़ अ लिप बाम, बट मैं इसको एज अ ब्लश यूज़ करती हूँ एंड आई शो यू वाई। ठीक है, बिकॉज ये मेरा फेवरेट ब्लश है अभी तक का, एंड दिस इज बेबी लिप्स इन द शेड हाईलाइन वाइन लिप बाम। सो आई जस्ट टेक सम प्रोडक्ट ऑन माई ब्लश, बैक ऑफ द हैंड एक्सेस निकालेंगे एंड विल स्टार्ट अप्लाइंग फ्रॉम द हाई ऑफ माई चीक्स, एंड देन हम इसको धीरे धीरे करके नीचे लेके आएंगे। See the difference, very natural, very dewy, and ये एकदम ऐसा फील करवाता है कि आपने ना ऊपर से कोई प्रोडक्ट नहीं लगाया, आपकी स्किन विद इन ग्लो कर रही है ऐसा। सो दिस इज़ माई फेवरेट ब्लश, एंड इवन इफ आई एम नॉट अप्लाइंग एनी मेकअप ऑन माई स्किन आई विल मेक श्योर कि मैं ये वाला ब्लश तो हमेशा लगाऊँ। ये मेरे बैग में भी हमेशा रहता है और ये मेरे मेकअप में भी हमेशा रहता है। लाइक इफ यू डोंट वांट टू अप्लाई एनी मेकअप ऑन योर एवरीडे रूटीन, सो यू कैन जस्ट गो इन विद दिस प्रोडक्ट and tap 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 and you have your very healthy looking glowy skin within seconds. See? मुझे लगता है मेरे को थोड़ा सा और प्रोडक्ट लगा लेना चाहिए, but I think I might do that after locking this up with my compact powder. And with the help of this compact powder हम जल्दी से सेट कर लेंगे अपना बेस so that move ना करे कुछ भी। So as you can see, starting में मेकअप थोड़ा सा इधर उधर लग रहा था, but right now it's coming together, and यही मेकअप का एक बहुत बड़ा की है कि जब तक आप सारे स्टेप्स नहीं कर लेते, आप नहीं बता सकते कि वो मेकअप ऑल टुगेदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। You need to trust the process, and that's the key for your good makeup. I'll do the bronzing with the help of this palette only. इसमें ये थोड़ा सा bronzer है। I'll take some amount of product. Brush को flatten कर देंगे ऐसे, and I'll just do this to give my cheeks a very sleek look. Okay, and now I'll blend this up in upward direction. See, you can totally see a difference. इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है ना अगर आप ब्रॉन्जिंग कर लो या फिर कॉन्टोरिंग कर लो। एंड हमेशा इसको ना अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करते हैं।
can blend it like this, but I like blending it like this क्योंकि मुझे हैबिट हो गई है. And with that, my face is done, my eyes are done. Now my brows are left and even my eyelashes are left. So guys, after curling my lashes, I'm using my all-time favorite mascaras from the house of Maybelline, which is the Lash Sensational mascara. ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अफोर्डेबल है एंड एक ही बार में आपके लैशेस को इतना ज़्यादा डेंस वॉल्यूम लेंथन कर देगा ना. सी विथ नो लाइन. एंड मैंने कुछ फास्ट फॉरवर्ड नहीं करा, तो यू कैन एब्सोल्युटली ट्रस्ट दिस प्रोडक्ट. एंड आप सोच रहे होंगे मैं इतना धीरे की बोल रही हूँ, अटक अटक के, क्योंकि मस्कारा लगाते वक्त बोलना इज अ टास्क एंड मैं वो भी कर रही हूँ. देख रहे हो आप मैं कितना टैलेंटेड हूँ. वेरी टैलेंटेड पर्सन आई एम. इनर लैशेस पे भी लगाना, डोंट स्किप दैट. And now you can see my lashes. है ना, ये देखो. Lashes are done and only my brows are left. तो उसके लिए भी मेरे पास एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, which is Blue Heaven Sculpt Set. and ये एक ब्राउ जेल है. and अगर आप ऑफिस गोइंग हो या कॉलेज गोइंग हो, आपको सेट करना नहीं आता है अपना ब्राउज, यू कैन गो फॉर दिस. यू कैन ट्रस्ट दिस प्रोडक्ट एंड सी. एंड इसका नाम आई थिंक सही रखा है, स्कल्प सेट, बिकॉज दिस स्कल्प्स योर आईब्रोज विथ नो टाइम. गाइज यू कैन सी इतनी जल्दी इसने स्कल्प कर दिया मेरा आईब्रोज. और अगर मैं ये पेंसिल से करती तो कितना टाइम लगता. So I don't use pencil generally because मेरे eyebrows already dense हैं and उससे शायद और ज़्यादा हो जाए, तो मैं वो ये रिस्क नहीं लेती. कभी कभी ले सकते हैं, but this product is actually good for the price range that they are offering you. ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. See, my brows are also done and now हमें सिर्फ अपनी अंडर आईज में थोड़ा सा शैडो लगाना है and lipstick and we are done. So guys, my base is done, my lids are done, my lashes are also done, my brows is also done. So we are almost done. Only 2 steps are pending, which is first हमें अपना अंडर आईज पे भी शैडो लगाना है सो दैट थोड़े इन्हांस हो जाए और भी ज़्यादा लुक प्रिटी लगे. और हमारा लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप विच इज़ लिपस्टिक, वो भी पेंडिंग है, तो हम वो भी कर लेते हैं फटफट. गाइस, फॉर माई अंडर आइज आई एम यूजिंग द सेम ब्राउन शेड एंड थोड़ा सा ही लगाएंगे, ज़्यादा नहीं. एंड मेक श्योर आप थोड़ा सा ही प्रोडक्ट लें. एक्सेस निकाल दे बिकॉज डस्ट ऑफ भी हो सकता है. This is looking very pretty. Same way. ये करते वक्त आप नहीं बोल सकते, आप एक्चुअली नहीं बोल सकते बिकॉज थोड़ा सा भी डस्ट ऑफ हो जाएगा, आपका मेकअप खराब हो जाएगा. एंड नॉर्मली आपको जस्ट ऊपर देखना है और अपने लैशेज, जो आपके ये वाले लैशेज है, उसी के पास प्लेस करना है अपना प्रोडक्ट. ब्लेंड करते हुए एंड मेक श्योर कि आप इसका डस्ट ऑफ निकाल लें बिकॉज फॉल आउट हो गया तो आपका बेस ख़त्म, आपकी मेहनत ख़राब हो चुकी है. उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, आप चाह के भी नहीं बचा पाएंगे. सो मेक श्योर कि आप ऐसे कर लें एंड थोड़ा थोड़ा ही प्रोडक्ट लेंगे, उसे बिल्ड कर सकते हैं. मेरा ये तो हो गया है, ये वाला रहता है, हम ये भी कर लेते हैं.
कि आई एम डूइंग एवरीथिंग ऑन कैमरा। तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि हाँ उन्होंने पीछे बैक कैमरा लॉन्च किया है। आई एम डूइंग एवरी सिंगल स्टेप इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम हैप्पी कि सारा मेकअप साथ में आ गया है। सो दिस इज़ डन। So let's move on to our last step, which is lipstick. And one of the toughest thing to choose is lip shade. And मैं आज शायद nude ही जाऊँ because eye look is bold and base is minimal. So I think कि मैं nude lips with a gloss so that थोड़ा सा dewy लगे makeup. And I think I might apply some more brush and last and so that will enhance your look. But I hope you are loving it till now. So as you can see, my makeup is looking good. My eyeshadows are popping and मैंने अपने brows भी कर लिए हैं and under eyes भी कर ली हैं. Base is done. So it's time for our last step, which is lipstick. One of the favorite steps of women. And lipstick के लिए I might go neutral or nude because आई शेडो बहुत पॉपिंग है, बेस मिनिमल है, तो आई रियली डोंट वांट कि मेरी सारी भी जितनी भी मेहनत है उस पर पानी फिर जाए, सब लोगों की नज़र मेरी लिपस्टिक पे रहे। तो उसके लिए हम एक न्यू लिपस्टिक चूज़ करेंगे। सो यू कैन चूज़ एनी ब्राउन न्यूट्रल लिपस्टिक एंड टुडे आई एम यूजिंग दिस। एंड इसका शेड नेम मेरे को नहीं पता, ये मिट चुका है इस पे जो भी था। ये स्विस ब्यूटी का था या मार्स का था, ये स्विस ब्यूटी का है प्रोडक्ट एंड बहुत ही न्यूट्रल शेड है। सो यू कैन सी। सो गाइस आई हैव यूज्ड दिस शेड एंड ये एक न्यूट्रल ब्राउन शेड है बिकॉज मैंने अपने ब्लेंडिंग के लिए एक ब्राउन शेड यूज़ किया था, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट फॉर लिप्स आल्सो आई यूज अ न्यूट्रल ब्राउन शेड। एंड इसी के ऊपर हम लोग एक प्यारा सा पिंक कलर का ग्लॉस लगाएंगे सो दैट इट गिव्स यू दैट ग्लास इफेक्ट एंड आई रियली होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। सो आई एम गोना टॉप इट with the help of Nykaa gloss which is in the shade 01 Honey Boo। बहुत ही प्यारा शेड है। अगर आप मेकअप नहीं लगाते हैं, आपको एवरीडे रूटीन पे एक ग्लॉस चाहिए, गो फॉर दिस। एवरीवन गोना आस्क यू व्हिच शेड यू हैव अप्लाइड बिकॉज ये बहुत ही नेचुरल है एंड बहुत ही हाइड्रेटिंग है और इसकी स्मेल इज़ लाइक अ कपकेक, बहुत प्यारी स्मेल है। मैं इसको इसलिए लगा रही हूँ बिकॉज मेरा लुक थोड़ा बैलेंस आउट हो जाएगा एंड अब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। See, this looks very pretty. अब I think I have completed my look. जल्दी से आउटफिट चेंज करके ज्वेलरी पहन के मैं आपको फुल लुक दिखा सकती हूँ। So with that the video comes to an end and लास्ट में मैंने एक बिंदी अप्लाई किया है एंड यू कैन टोटली सी अ डिफरेंस। बिल्कुल ही लुक चेंज हो गया है। सो आई रिकमेंड कि आप भी एक ब्लैक बिंदी लगाएं। दिस इज़ माई पर्सनल चॉइस, सो आपके ऊपर है आप कौन सी बिंदी लगाते हैं। बट मेकअप बहुत ही अच्छा हुआ है, बहुत ही ड्यूई हुआ है, मिनिमल रखा था एंड लुक यू कैन ऑलरेडी सी। एंड ड्रेस ने तो बहुत ही ज़्यादा इन्हांस कर दिया है। एट एंड आई रियलाइज़ कि नवरात्रि बहुत ही नज़दीक है, तो क्यों ना लुक को एक नवरात्रि टच दिया जाए। सो आई रियली होप कि आपके लिए वीडियो बहुत ही इंजॉयबल थी एंड हेल्पफुल भी होगी लोगों के लिए। So with that, the video comes to an end. I really hope that you like this video. Please comment down below, share this video, and I'll really appreciate if you just take a moment and subscribe to my channel if you're new here. And bye guys, take care. I love you. Bye bye.